Good morning, students. I'm Seema Gupta. Today, I'm going to deliver the lecture on Introduction to Pharmacology. See, this is the new subject. This is introduced in the second year. In this subject, you study about the various drugs, how it acts in the body. तो इसको अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करें तो देखिए से सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजी. See, pharmacology, it is the science of drugs. It cover all aspects of knowledge of drugs. या इसे ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हूँ. सी फार्मा का मतलब होता है ड्रग, ठीक है. और लोगोस, सी इसको फार्माकोलॉजी को दो वर्ड्स में ब्रेक कर दीजिए आप, फार्मा एंड कॉलोजी. फार्मा का मतलब होता है ड्रग एंड लोगोस मतलब होता है डिस्कोर्स, यानी द साइंस दैट डील विथ ड्रग्स. तो इसके अंदर क्या पढ़ना है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में दिया गया है तो वो सब्सटेंस बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है. ओके, या शॉर्ट in a broad sense it deals with the interaction of the drug when the drug is given into the body, how it interact with the living system. ठीक है. तो इसको ब्रीफली फार्माकोलॉजी की जो है दो ब्रांचेस होती हैं, या फार्माकोलॉजी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर वन होता है फार्माको डायनामिक्स एंड नंबर टू इज फार्माको काइनेटिक्स. So we need to study both these very important. These both are very important. So see pharmacodynamics. Pharmacodynamics, it means what the drug does to the body. See, whatever drug you are taking in the body, what is its function? What is its action? Or we can say what is the mechanism of action of that drug. Means whatever drug that you are introducing into the body, how it is acting in the body. Okay, so means what drug does to the body, that we deal in the pharmacodynamic. The second is pharmacokinetics. Pharmacokinetics, see, pharma means drug, kinetics means movement. It is the movement of the drug inside the body. So pharmacokinetic, it deals with what the body does to the drug. See, डायनामिक, फार्माकोडायनामिक में आपने पढ़ा कि ड्रग ने बॉडी पे क्या काम किया. फार्माकोकाइनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि बॉडी क्या काम कर रही है. आप कोई भी ड्रग आपने लिया बॉडी के अंदर, सो दैट ड्रग अपना काम किया ड्रग ने, वो फार्माकोडायनामिक हो गया. बॉडी भी तो उस पर कुछ काम करेगी. बॉडी क्या काम कर रही है, वो उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है, उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज्ड कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है. अब ये टर्म्स आप लोगों के लिए नए हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया. इसको हम डिटेल में लेंगे आगे, ठीक है. अभी आप इतना समझ लीजिए कि एनी ड्रग जो आप विच यू आर टेकिंग इनसाइड द बॉडी, दैट फर्स्ट नीड टू बी एब्जॉर्ब. उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सारे पार्ट्स में, metabolized होगी and it will be excreted out from the body. So all these parameters, they are studied under pharmacokinetics. Okay, so basically जो pharmacology है वो आपकी दो हिस्सों में बटी हुई है. The number one is pharmacodynamic and the second is the pharmacokinetic. Means whatever drug that you are taking in the body, that is doing some action in the body, so that is the pharmacodynamic. And how the body is acting on that drug is pharmacokinetics. Now coming to the branches of pharmacology. See, there are various branches of pharmacology, or you can also study under scopes of pharmacology. So first is the toxicology. Chemotherapy,
clinical pharmacology, therapeutics, pharmacogenetics and biopharmaceutics. See, these all are branches of pharmacology. मतलब इसमें कहीं ना कहीं pharmacology का रोल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी. वी नीड टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सिकोलॉजी. सी, टॉक्सिकोलॉजी मीन्स टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग or poisonous effect of that drug. Okay, so it basically deals with the how the effective the treatment means if any drug is doing any poisonous to the body, if the drug is poisoning the body, or if you are taking the drug in the excess amount, ज़्यादा अमाउंट में आपने ड्रग ले लिया है और वो पॉइजन हो गया है, तो उसका एंटीडोट कैसे बनाएंगे आप? या ड्रग पॉइजनिंग अगर ड्रग पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? तो ये सारा टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा जाता है. ठीक है, तो इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ पॉइजन. मीन्स इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द वेरियस केमिकल्स. ठीक है, यानी टॉक्सिक इफेक्ट शॉर्ट में. नेक्स्ट आता है आपका कीमोथेरेपी. सी, कीमोथेरेपी होता है, कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स. नाउ दैट केमिकल कैन बी अ ड्रग बट इट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट. सी, कीमोथेरेपी में क्या हो रहा है? एनी ड्रग दैट यू आर टेकिंग इनसाइड द बॉडी, इट इज़ इनहिबिटिंग और डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैरासाइट्स or the cancer cell, and it should produce a minimal effect in the living tissue. See, इसे ध्यान से समझिए. कीमोथेरेपी का मतलब होता है कोई भी ड्रग आपने बॉडी के अंदर दिया, वो आपके कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है या पैरासाइट है या माइक्रोब है जिसने आपकी बॉडी में अटैक किया है, तो वो ड्रग उसको मार देगा, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको नहीं मारेगा. That means it should produce the minimum of the side effects. Means the healthy tissues or the healthy cells should not be destroyed. जो foreign cells हैं, bacteria है, the microorganism है, these are destroyed. But the living tissues, the healthy cells, they should not be destroyed. So this is the chemotherapy. हमें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, they should destroy the cancerous cell, not healthy cells. ठीक है, तो कीमोथेरेपी में वही सब पढ़ा जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. सी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मतलब होता है कि फार्माकोलॉजी का क्लिनिक पे क्या रोल है. समझ गए? कैसे जो आपकी कोई भी ड्रग है, कैसे उसका डायग्नोसिस हो रहा है, हाउ इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट, हाउ इट इज़ यूज्ड इन प्रिवेंशंस. ठीक है, तो इसको हम अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि इट डील्स विद द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन मैन, ह्यूमन बींग्स में क्या इफेक्ट है, यानी किसी भी ड्रग की पोटेंसी या उसकी यूजफुलनेस, डोजेस या टॉक्सिसिटी ऑफ द न्यू ड्रग फॉर द सेफ क्लिनिकल यूज़. तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या ह्यूमन बींग्स में फार्माकोलॉजी या ड्रग का क्या रोल है, ये पढ़ा जाता है. नाउ कमिंग टू थेरेप्यूटिक्स. सी, थेरेप्यूटिक्स होता है, थेरेप्यूटिक्स मतलब होता है, इट इज़ थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, राइट. सो ट्रीटमेंट मीन्स हाउ द ड्रग इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और इट इज़ द साइंस एंड द आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. So this is the therapeutics. Next is pharmacogenetics. Pharmacogenetics, it is a new field. See, it deals with genetically mediated variation in drug response. इस लाइन का क्या मतलब है? See, genetics से समझिए कि if suppose I am giving you the anti-malarial drug, okay. So this anti-malarial drug is causing diarrhea in a particular person, while in the another person there is no effect.
कहने का मतलब है अगर मैंने कोई भी एंटी मलेरियल ड्रग, किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है एंड मैंने उसको एंटी मलेरियल ड्रग दी है, एक पेशेंट को डायरिया हो रहा है और दूसरा पेशेंट को डायरिया नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उन दोनों के जीन में कहीं अंतर है। तो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से भी ड्रग का इफेक्ट अलग हो सकता है। तो वो एक ब्रांच है ऑफ साइंस, दैट इज़ द फार्माकोजेनेटिक्स, जहाँ पे यही ड्रग के वेरिएशंस पढ़े जाते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जीन्स, दैट इज़ वाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिफरेंट। ओके, नाउ कमिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स। See, biopharmaceutics, it deals with the development of new drug delivery system. यानी किसी भी ड्रग का नया डोसेज फॉर्म निकाला है। जैसे इंसुलिन है, आपका इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में है, मान लो हमने इंसुलिन का टैबलेट बना लिया, तो एक नया डोसेज फॉर्म निकाल लिया है हमने, तो ये बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा जाता है। सो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द डोसेज फॉर्म कैन इन्फ्लुएंस द फार्माकोडायनेमिक एंड द फार्माकोकाइनेटिक properties of the drug. Now coming to the next slide is the sources of the drug. See, there are two sources of the drug. Sources यानी drug कहाँ से मिलती है हमको, natural sources हो सकते हैं and synthetic sources हो सकते हैं। So natural sources है आपके, जैसे plants है, जैसे natural, animal source है, microorganisms हैं, minerals हैं, these all are natural sources. Synthetic sources होते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेस एंड सिंथेटिक। नाउ इसको डिटेल में लेंगे हम थोड़ा सा। प्लांट सोर्स, सी प्लांट सोर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ की, यानी लीफ से हमको ड्रग मिल रही है। तो लीफ से हमें जो प्लांट है उसका नाम है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस प्लांट की लीफ, पत्ता आपने तोड़ लिया, उस पत्ते से आपको जो दवाई मिल रही है वो है डाइजॉक्सिन। और वो डाइजॉक्सिन किस लिए यूज़ हो रही है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो गया उसके लिए दिया जाता है, यानी प्लांट से मिल रहा है ये, तो प्लांट ए नेचुरल सोर्स है ड्रग का। देन सेकेंड बार्क। बार्क जो होती है, छाल होती है जो ऊपर तना जो होता है उसकी, तो बार्क में कौन सा प्लांट की बार्क यूज़ होती है? सिंकोना। सिंकोना प्लांट है, उसमें से कौन सी ड्रग मिलेगी? क्विनीन। क्विनीन किस लिए यूज़ हो रही है? मलेरिया के लिए, तो एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है। देन फ्रूट। फ्रूट कहाँ, कौन से प्लांट का यूज़ होता है? ओपियम का। ओपियम से कौन सी ड्रग मिल रही है? मॉर्फिन। एंड व्हाट इज़ द यूज़? एनाल्जेसिक, पेन किलर की तरह यूज़ हो रही है। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर्स। देन सीड। सीड की कौन सी प्लांट हो रहा है आपका, कौन से प्लांट से मिल रही है? एसरीन। ड्रग का नाम है एंटीकोलिनेस्ट्रेस और कहाँ यूज़ होती है? माइस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज़ है, वहाँ यूज़ होती है, ठीक है। देन आता है आपका प्लांट सोर्स। सी प्लांट सोर्स ही इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। एग्जाम्पल है जैसे आपका सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क मैंने अभी बताया था आपको, सिंकोना बार्क से क्विनीन मिलती है और क्विनिडीन, दो ड्रग मिलती हैं। मलेरिया के लिए यूज़ हुई है क्विनीन, और क्विनिडीन का यूज़ है एंटी अरिथमिक। एंटी अरिथमिक मतलब जो हार्ट की जो हमारी रेट और रिदम जो गड़बड़ा जाती है उनके लिए जो ड्रग यूज होती है उसको एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डिजिटैलिस जो प्लांट है उसको उससे आपको ये मिलता है ड्रग विच इज़ यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। नाउ नेचर ऑफ द ड्रग्स। नेचर ऑफ द ड्रग अलग अलग होता है। जैसे एल्कलॉइड हैं, एल्कलॉइड किससे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं ये आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे डिटेल में। एल्कलॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो जो मॉर्फिन आपने लिया ओपियम से, प्लांट से जो ऑब्टेन्ड हुआ, उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था जिसकी वजह से कि एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड हो रही थी, एनाल्जेसिक एक्टिविटी, इट इज़ प्रोड्यूसिंग मॉर्फिन, तो इसके अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। डिजिटैलिस जो आपकी हार्ट के लिए यूज हो रहा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हार्ट पे काम कर रहा है, तो ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। देन फिक्स्ड ऑयल वाली ड्रग्स आपको होती हैं, पीनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है।
वोलेटाइल ऑयल में आते हैं आपके जिंजर ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है। गम्स में आते हैं आपके अगार है। टैनिन्स आते हैं टिंचर। यानी ये नेचर ऑफ द ड्रग्स है, जो अलग अलग ड्रग्स हमको प्लांट से मिल रही है उसका एक्चुअल में नेचर क्या है, वो क्या है, उसके अंदर अल्कलॉइड है या ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसकी बेसिक जो फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे आप क्या होता है। नाउ प्लांट से आपने देख लिया कि प्लांट से कैसे ड्रग्स ऑब्टेन्ड हो रही हैं। देन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर यूज्ड टू किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। तो हमारे ये जो एंटीबायोटिक्स जो हमें मिलती हैं उसमें आते हैं आपकी कहाँ से मिल रही हैं, जैसे पेनिसिलिन है, इट इज़ एन एंटीबायोटिक्स, वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रही है, किससे मिल रही है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। देन आपकी जैसे ग्राइसोफुल्विन है, ये एक एंटीबायोटिक है, किससे मिल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ग्राइसोफुल्विन स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये नाम है, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से अदर आपके दूसरी ड्रग्स हैं वो डिफरेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। यानी जितनी भी आपकी नॉर्मली एंटीबायोटिक्स हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से भी ड्रग मिलती हैं, जैसे आपकी ये लीच है, ठीक है, लीच इज़ एन एनिमल, उससे आपका थायरॉक्सिन विटामिन B12 मिलता है। जो पॉर्क है उसका पैनक्रियाज है, ठीक है, उससे आपको कॉड लिवर ऑयल मिलता है। तो ये एनिमल्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिनसे आपको ड्रग मिलती है। मिनरल्स जैसे फेरस सल्फेट एक मिनरल है, मैग्नीशियम सल्फेट मिनरल्स हैं। फेरस सल्फेट का यूज़ किस लिए होता है, एनीमिया के लिए दिया जाता है, आयरन होता है ना, एनीमिया के दूर करने के लिए दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव के लिए दिया जाता है। तो दीज आर ऑल मिनरल्स। सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक एंटा एसिड है। से अभी आपको परगेटिव्स क्या होते हैं, परगेटिव समझ लीजिए, परगेटिव होते हैं जो ड्रग विच आर कॉजिंग डायरिया टाइप मूवमेंट, ठीक है, जो आपके बाउल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, परगेटिव। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, एंटा एसिड्स होते हैं जो हमारी एसिडिटी, जो एसिडिक मीडियम जो बॉडी में क्रिएट हो गया है उसको कम करते हैं, यानी मीडियम को बेसिक कर देंगे, स्टमक के जो मीडियम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मिनरल्स से आपकी डिफरेंट ड्रग्स भी ऑब्टेन्ड होती है। सिंथेटिक बनाई जाती हैं लैब्स में, तो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं विच आर ऑब्टेन्ड सिंथेटिकली, ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड इन दी लैब। इसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज मोर चीपर, more potent and more safer, and of course you can go for a large scale production. See, many drugs they are semi-synthetic also. Semi-synthetic means they are mainly obtained by changing the chemical structure of natural obtaining drug. जो natural drug आपको मिली है, जैसे मॉर्फिन है, उसको हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो सेमी-सिंथेटिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। जैसे एट्रोपिन है, उसको हमने एट्रोपिन ब्रोमाइड एक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड बनाया। ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन से भी ड्रग्स मिल सकती हैं, आप सोच सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं वो भी एक सोर्स है ड्रग का। प्रेग्नेंट वुमेन से हमें एक हार्मोन मिलता है जिसको बोलते हैं हम HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन, ठीक है। देन आपके जो ह्यूमन किडनी सेल्स हैं उनसे इंसुलिन मिल जाता है। देन जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स जो होती हैं उनके यूरिन से आपको अलग हार्मोन्स मिलते हैं। तो ह्यूमन दे आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मेडिसिन्स। नाउ कमिंग टू अदर सोर्सेज, सम ऑफ द मेडिसिन्स दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब है नई मेथडोलॉजी आई है जिससे क्या करना है कि जो DNA टेक्नोलॉजी से, यानी DNA में ऑल्टरेशन करके या जीन में कुछ ऑल्टरेशन करके
ठीक है, उससे हम कोई नई ड्रग बना रहे हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस बी की ड्रग बनी है, ठीक है, इंसुलिन बना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह से दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ड्रग। So that completes your introduction to pharmacology and the sources of the drug. Okay.